آج کل اس سردیاں ہیں نا، تو سردیوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہ حضرات دھکے سے اگلے بندے کو نا جرابیں اگر وہ اتار کر وضو کرنا چاہے تو اتارنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نا ایسے مسا کر لو، کیا ہے ایسے مسا کر لو نماز ہو جائے گی۔ یہ بات میری یاد رکھیں کہ باریک جرابوں پر مسا کرنے کے متعلق کوئی ایک بھی صحیح حدیث صریح موجود نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ جو روایت موجود ہے محدثین نے اس کو شدید مجروح، شدید ضعیف بتایا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مسلم جیسے حضرات، امام ابو داؤد جیسے حضرات، امام بہقی جیسے حضرات جو بڑے بڑے محدثین ہیں، اور وہ محدثین جن کو یہ بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان حضرات نے جرابوں پر مسح کی حدیثوں کو شدید ضعیف بتایا ہے۔ اور ہم یہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی درجے میں جرابوں پر مسح کی کوئی حدیث ایسی ہے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد وہ جرابیں ہیں جو کہ موزوں جیسی ہیں، جو موزوں جیسی ہیں، موزے کی صفات والی ہیں، ان پہ مسح جائز ہے۔ عام جراب پر مسح کرنا جو پتلی ہے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں، پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ سعودیہ والے اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھ لیں، اصل حکم ہے قرآن کریم کا کہ جب وضو کرو تو اپنے پاؤں کو دھوو۔ ہم جانتے ہیں وضو کے 4 فرض ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اس وقت فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھوو، یہ پہلا فرض۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت بازوں کو دھوو، اور فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوو۔ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ واضح قرآن پاک کی آیت ہے، نص قطعی ہے اور قرات متواتر ہے، اس کی وجہ سے پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اب موضوع پر مسح جب ہم کرتے ہیں، اس کے قائل علماء کرام ویسے نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہوا جب تک چڑھتے سورج کی طرح میرے سامنے موضوع کی حالت میں مسح کرنے کے دلائل نہیں آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات، سب تواتر کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، لوگ کہیں انہیں بندے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ 80 سے زائد صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، صحیح بھی ہیں، متواتر بھی ہیں، اور امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے کہ موضوع پر مسح جائز ہے۔ اس کی وجہ سے کہا کہ بھئی قرآن پاک کی اس آیت میں تخصیص ہوئی یا نسخ ہوا کہ جب بندے نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس حالت میں موضوع پر مسح کر سکتا ہے، وگرنہ اس کو پاؤں دھونا پڑے گا۔ تو چونکہ قرآن پاک کی واضح آیت سے پاؤں کا دھونا ثابت تھا، اب اس میں اگر مسئلے میں تبدیلی آنی تھی، اس کے لیے قوت میں دلیلیں بھی ایسی چاہیے تھیں جو کہ قوت میں اس کے برابر یا اس سے ملتی جلتی ہوں۔ تو وہ حدیثیں جن میں موضع پر مسح کا تذکرہ ہے، وہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، صحیح ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے صحابہ نے دیکھا کہ جتنے کو ہم گن نہیں سکتے، اس لیے ہم قائل ہوئے کہ موضع پر مسح جائز ہے، موضع پر مسح جائز ہے۔ کیوں؟ ادھر وضو والی آیت پاؤں دھونے کی بھی متواتر اور موضع پر مسح کی حدیث بھی متواتر۔ ہم نے کہا بھی مسئلہ منسوخ ہو گیا موضع پر مسح کی حالت میں۔ اگر کسی بندے نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس وقت مسئلہ منسوخ ہو گیا کہ اس حالت میں پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے، موضع پہ مسح کر لو۔ اب موزہ وہ ہوتا ہے جس میں 3 شرطیں بڑی بڑی پائی جائیں، 3 شرطیں بڑی بڑی پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ پاؤں پر خود بخود ٹھہرا ہوا ہو، کسی چیز سے اس کو باندھا نہ گیا ہو، اوپر رسی نہ پائی ہوئی ہوئے، لاسکٹ نہ پائی ہوئی ہوئے۔ اگر انہوں ویسے پر کھڑا کریے، پاؤں تو پایا بغیر ویسے ہی وہ خود بخود کھڑا ہو جائے، اپنی سختی کی وجہ سے اور جو ہے اپنی موٹائی کی وجہ سے۔ اتنا موٹا ہے، ہم نے یوں کھڑا کیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ گرے نہ اس طرح اتنا کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2 کہ اس کو پہن کر مسلسل بندہ کم از کم 1 فرسخ جو 3 میل کا ہوتا ہے، 3 میل تک بندہ پیدل چل سکے، یہ کوالٹی ہو اس کے اندر۔ سمجھ آئی؟
नंबर 3, तीसरी सिफत मोज़े की ये है कि उस मोज़े पर मसा करना जायज़ है कि जो इतना मोटा हो कि पाँव की साख उसने छुपाई हुई हो। लेकिन मैंने जुराब पहनी हुई है, इसने पाँव की साख छुपाई नहीं हुई। साख का मतलब क्या कि पाँव की उंगलियां, टखना, गिट्टा, इनकी साख नज़र ना आती, इतना मोटा हो। जिससे मोज़ा होता है ना, मोज़ा चमड़े का पहनते हैं, अब उसमें उंगलियां की साख, ये उंगली नज़र आ रही है, ये साख, ये उंगली बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी, नज़र आई ना साख, मोज़े में नज़र नहीं आती। ये देखिए टखना नज़र आ रहा है, ये देखिए मोज़े में टखना नज़र नहीं आता, साख नज़र नहीं आती। इतने मोटे हों कि पाँव की साख नज़र ना आए, सातिर मुझे कहते हैं अरबी में, और पानी अगर उसके ऊपर फेंको तो पानी नीचे ज़मीन ना अपना पाँव तक ना पहुँचे, इतने मोटे हों। ये 3 शर्तें मोज़ों पर मसा के लिए हैं। क्यों? सहाबा किराम उम्मन और हुज़ूर नबी पाक सल्लम भी जो है वो मोज़े को पहनते थे, तो सहाबा किराम की आदतें आम तौर पर इसको पहनकर पैदल चलते थे, जूते साथ इस्तेमाल नहीं करते थे। इस पर मसा करना जायज़ है मोज़े पर। ये 3 शर्तें मोज़ों की हैं। तो जो जुराबें मोज़ों वाली हों, यानी मोज़े वाली सिफ़ात वाली 3 सिफ़तें उसमें पाई जाएँ, उस पर मसा जायज़ है। जिसमें ये शर्तें ना पाई जाएँ उस पर मसा करना जायज़ नहीं है। अगर जुराबों पर मसा के मतलब कोई हदीस अगर है भी, मैंने कहा वो रिवायत ज़ईफ़, खुद इनके बड़े हजरात ने अपनी किताबों में लिखा है। मैं इस पर मुस्तकिल किताब लिख रहा हूँ कि लोगों की नमाज़ें बर्बाद हो रही हैं, कि इनके बड़े हजरात में से हैं नज़ीर हुसैन दिलवी साहब, शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन दिलवी साहब कहते हैं। उनका तफसीली फतवा उनके फतवा मौजूद है, जो बारी जनों पर मसा नहीं होता। इनके बड़े आलिम हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान मुबारकपुरी साहब है, जिन्होंने तोहफ़तुल आफ़ज़ी तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी है। उन्होंने खुद उनके फतवा भी मेरे पास मौजूद है, और तिरमिज़ी शरीफ की शरह भी उसमें उन्होंने लिखा है तफसील के साथ कि बारी जनों पर मसा नहीं होता। इनके बड़े आलिम हैं अब्दुल्लाह मुबारकपुरी साहब, उनकी किताब ये मिरआतुल मफाती जो है, मिशकातुल मसाबी की शरह, उसमें लिखा है मोज़े बारी जनों पर मसा नहीं होता। इनकी मशहूर किताब दस्तूरुल मुत्तकी यूनुस देलवी साहब की, उस पर लिखा है जुराब पर मसा नहीं होता। इनके काबर में से बड़े हैं जिसका नाम शमसुल हक अजीम बादी साहब है, उन्होंने सुने अबी दाऊद की शरह लिखी है औन मबूद के नाम से, उन्होंने लिखा है बारी जुराब पर मसा नहीं होता। आज उम्मत मुसलमा की नमाज़ें बर्बाद कर रहे हैं। हदीस पाक में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिफ्ताहु सलात तुहूर, जो तहारत है ये नमाज की चाबी है। तहारत नमाज की चाबी है। जिस बंदे का वज़ू है उसकी नमाज है, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। ये जुराबें जो पतली हम पहनते हैं ये ऐसे है जिस तरह के नंगा पाँव, इसलिए इसको उतार कर पाँव को धोना ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ है। अगर बंदा नहीं धोता तो उसका वज़ू नहीं हुआ। जिसका वज़ू नहीं हो उसकी नमाज हो जाएगी? उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? हुज़ूर नबी पाक ने फरमाया तहारत नमाज की चाबी है, तहारत नमाज की चाबी है। तो लिहाजा जब आज की फिर अहले हदीस के हज़रात है ना, ये कहते हैं जुराब पर मसा कर लो, कोई मसला नहीं है। धक्के से अगले बंदे को मसा करवाते हैं, अपनी नमाज तो बर्बाद करनी, दूसरे बंदे की भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, जो कहते हैं ना इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनके पीछे नमाज ना होने की वजह ये भी है कि ये आम पतली नायलून की जुराबों पर मसा कर लेते हैं। हालांकि मसा नहीं होता, वज़ू नहीं होता। जब वज़ू नहीं हुआ तो इमाम की नमाज कैसे होगी? इमाम की अगर अपनी नमाज नहीं तो उसके पीछे पढ़ने वाले बंदे की नमाज कैसे हो जाएगी? जबकि सऊदीया वाले हजरात ये नहीं कहते, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं इस मौजू पर कि सऊदीया वाले हजरात में और इन हजरात में क्या फ़र्क है मौक़िफ़ के अतबार से। तो वो कहते हैं जुराबे जो हैं आम पतली नायलून की, इन पर मसा नहीं होता। सऊदी उलमा के कई हवाला जात हैं और बहुत सारी किताबें वो हैं जो इन्होंने खुद शाया की हैं। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है फ़िक़ही अहकाम और रसाइल, ये किताब इन्होंने छापी है। इसकी जिल्द नंबर 1 है। शेख सालेह बिन फौजान सऊदी आलम है, तो उनकी किताब है। उन्होंने लिखा है कि बारी जुराब पर मसा नहीं होता, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 53 है। ये किताब इन्होंने छापी, मकतबा दारुस्सलाम ने छापी किताब, ये इनका मकतबा है। ये वही मिनहाजुल मुस्लिम किताब, ये अबू बकर जज़ायरी साहब बहुत सऊदी आलम थे, इन्होंने किताब छापी मकतबा दारुस्सलाम ने। इसमें लिखा है कि बारीक जुराब पर मसा नहीं, मोटी जो है मोटी जुराब पर मसा होगा, वो जो कि मोज़े की सिफ़ात वाली है।
इसी तरह ये मेरे पास किताब है शेख सऊदीया के मारूफ आलम है शेख इब्न बास, उनकी फतावा ये इन हजरात ने छापे हैं, अल हदीस हजरात ने पाकिस्तान से मकतबा दारुस्सलाम ने छापे हैं। इस शेख इब्न बास के फतावा में ये सफ़ा नंबर इसका 46 है, इसमें लिखा है कि बारी जुराब पर मसा नहीं होता। इसी तरह ये मेरे पास एक और फतावा का मजमुआ सऊदी उलमा का फतावा इस्लामिया, ये भी अल हदीस हजरात ने उर्दू तर्जमे के साथ छापा, यहाँ से मकतबा दारुस्सलाम ने इसको छापा। इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 314 पर लिखा है बारीक जुराब पर मसा नहीं होता, बारीक जुराब पर मसा नहीं होता। इसी तरह ये मेरे पास किताब है मारूफ सऊदी आलम है अल असइला वल उजूबा, ये मारूफ सऊदी आलम शेख अब्दुल अजीज़ अल मोहम्मद सलमान, अरबी में है अल असइला वल उजूबतुल फ़िक़हिया, यानी सवाल और उनके फ़िक़ही मसाइल उनके जवाबात, मतलब ये है। तो ये पहली जिल्द है, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर जो है वो 28 पर शेख अब्दुल अजीज़ अल मोहम्मद सलमान फरमाते हैं बारीक जुराब पर मसा नहीं, इसके लिए मोटी जुराब का होना ज़रूरी है। मोटी का सफ़र मैंने बता दिया आपको, जिसमें मौज़े वाली सिफ़ात पाई जाएँ। इसी तरह ये मेरे हाथ में एक फतावा का मजमू है फतावा अल-लुजनतु दाइमा अल-बहूस अल-इल्मिया वल इफ्ता, ये सऊदी उलमा की कमेटी बनी हुई है, वहाँ पर जो मुत्तफ़िक़ा फतावा उन्होंने सऊदी उलमा की कमेटी ने छापे हैं, तो उसका नाम दिया फतावा अल-लुजनतु दाइमा अल-बहूस अल-इल्मिया। ये इसकी 5वीं जिल्द है और 5वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 244 पर, 47 पर, 50 पर मुख्तलिफ फतवे नकल किए गए कि आम जुराब नहीं बल्कि उस जुराब पर मसा होगा जो मोटी है। इसी तरह ये किताब सऊदीया में आम चलती है, बल्कि जो है इदारों में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम ज़ादुल मुस्तनकिर है। ये मारूफ ये अपना हम्बली आलम मूसा बिन अहमद है, ये इनकी किताब है। ज़ादुल मुस्तनकिर के सफ़ा नंबर 59 पर जो है खुद इन्होंने लिखा है कि भाई जुराब जो है वो उसका मोटा होना ज़रूरी है, ये बारीक जुराब पर मसा नहीं होगा। ये रौज़ुल मुरब्बे ये इसकी शरह है, ये भी सऊदीया से छपी हुई है, मकतबा दारुज़्ज़मान, ये मक्का मुकरमा मदीना तैयबा के अंदर मकतबा है, वहाँ से मैं किताब लेकर आया था। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई जुराब का मसे के लिए मोटा होना ज़रूरी है, वगरना उस पर मसा नहीं होगा। इसी तरह ये मेरे पास किताब है सफ़ैद अल-फ़िक़्हुल इस्लामी अल-फ़िक़्हुल इस्लामी सवाल जवाब, ये लिखने वाले शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल गनीमान, ये मस्जिद नबी के मदरस है, ऊपर लिखा हुआ है। ये सऊदीया से मैं किताब लेके आया था, मस्जिद नबी के मदरस उन्होंने किताब लिखी है, इसमें भी लिखा है कि बारीक जुराब पर मसा नहीं होता। तो देखिए मैंने तकरीबन इस पर 8 हवालात आपको सऊदी उलमा किताबों के दिए। तो जो जुराब बारीक है, बारीक जुराब पर मसा नहीं होगा, अगर कोई बंदा कर लेगा उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वज़ू का फ़र्ज़ पाँव को धोना है, ऐसी हालत में पाँव धोना ज़रूरी था, चूँकि उसने फ़र्ज़ छोड़ दिया। बंदा एक फ़र्ज़ छोड़ दे तो वो काम शर्म शुमार ही नहीं होता, इसलिए वज़ू ही शुमार नहीं होगा। आप देख ले कितना नाजुक मसला है कि बंदा सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे जुराब पे मसा करके, लेकिन फिर भी बेनमाजी का बेनमाजी है।